सर्कल्स का बेसिक्स जो है हम लेवल 1 में किए हैं. विल सी द हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स इन दिस लेक्चर. ओके, यस सर. ठीक है. सर्कल्स का लेवल 2 स्टार्ट करेंगे. ओके, सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू सी. देखिए, we are going to see the concept of the position of a point with respect to a circle. That's the first topic. We're going to understand the intersection of a line and a circle. Then the intercept on axis by a circle. सर क्या है बेटा? सर्कल्स का लेवल 2 है. हाँ, लेवल 2 है. इसमें कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी किए हैं बट रिविजन भी होगा. ठीक है. एंड और भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो भी करेंगे. We are going to see the condition for tangency, the tangent at a point to a circle. We will see something called director circle, length of a tangent, conditions for two circles to touch or intersect, and common tangents. Okay, so these are the 9 topics that we are going to study in this part. Okay, so position of a point का मतलब है, मान लीजिए you have a equation of a circle and you have a point with you. How do you decide whether the point is inside the circle or outside the circle? What is the position of a point with respect to a circle? Intersection of a line and a circle. Assume that you have a circle and you have a line. How do you decide whether this line is outside the circle or touching the circle or intersecting the circle at 2 points? Yes or no? The line can be of any of these cases, right? If you have a circle and a line, the line might satisfy any of this case, right? 1, 2, 3. So we'll try to understand how to decide. Okay, next we'll try to understand the intercepts on axis by a circle. This is something that we have already done. If you have a circle, what is the x-intercept, what is the y-intercept? याद है फॉर्मूला? 2 root g square minus c 2 root f square minus c, right? Intercepts on axis. So we are going to see that again, and we are going to understand the condition for tangency. That is, if you are given a circle and if you are given a line, you will be asked to check whether the line is a tangent to the circle. So what is a simple condition that can be applied to check whether the line is a tangent to the circle? And tangent at a point to the circle, if you have a circle and if you are having a point on the circle, what is the equation of tangent at this point? Clear? And we'll see something called director circle. We'll try to understand what this is when we go through the topic. Length of tangent, this is also something we have already done, if you remember. So if you have a point P outside the circle, you can draw 2 tangents from this point, right? First tangent, second tangent. So what is the length of the tangent? Do anybody remember the formula? What is the length of the tangent? So if you know the equation of this circle and if you know the coordinates of this point, so how do we find the equation of the circle? That is the question that we are going to solve in this. And 2 circles touch or intersect. If you have 2 circles, what are the different positions possible? They might be not cutting each other, they might be touching each other externally, right? Or they can be intersecting each other, they can be touching each other internally, or one circle can be inside the other circle, yes or no? Any of these
cases are possible. Say again. We have two circles. Yes or no? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? So the question is, if you are given two equations of circles, how do you decide which case the circles are in? That is something which you are going to see. And depending on the positions of the circles, the number of common tangents varies. देखिए, if two circles are not touching each other, there are two common tangents like this and two common tangents like this, right? If the circles are just touching each other, you have two common tangents above and other and only one common tangent between them. If the circles are intersecting, you have two common tangents, one above and the other. There are no tangents between these circles. So if there are two circles, in this case there is only one tangent. If one circle is lying inside the other circle, there are no common tangents. So we're going to understand how this works. And we are also going to understand how to find the equations of common tangents. समझ में आ रहे? These are the topics that we are going to look at in this module. यहाँ तक clear है? Yes, sir. So shall I go to next page? देखिए, first देखिए, position of a point with respect to a circle. Assume that you have a circle, you also have a center, right? So if you have a point P, x1, y1. Okay, if the point P lies outside the circle, then x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c is greater than 0. ध्यान दे दीजिए एक बार. Equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. सही है क्या नहीं? सर्कल की इक्वेशन ऐसे ही होगा ना? Let this be the equation of this circle. Okay? Let the coordinates of P be x1, y1. Okay? Now, what is the general condition? थोड़ा सा कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं. अगर सर्कल का रेडियस r है तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r. अगर C से P तक डिस्टेंस जो है, इफ इट इज ग्रेटर देन r, देन द पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल. ऐसा ना? जनरल कंडीशन यही होना चाहिए क्या नहीं? If the distance of the point P from center is less than r, yes or no? If the distance is less than r, then the point will lie inside the circle. Yes or no? समझ में आ रहे? Yes, sir. So outside के लिए, if the point has to lie outside, simply CP square is greater than R square. Will it work? Does this condition work? सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है? किसी को याद है? Minus G, minus F. Minus G, minus F. Good. So what is CP square? x1, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा ना, x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, व्हाट इज आर स्क्वायर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर स्क्वायर ऑफ दिस सर्कल? G square plus A square minus C. हाँ, दैट इज आर. सो स्क्वायरिंग करने के बाद रूट निकल जाएगा, ऐसा ना? So if you simplify this, what are you going to get? x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus g square plus f square is greater than g square plus f square minus c. G square f square cancel हो गया. Minus c has come to this side. So x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus
2f(y1) plus c is greater than 0. समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? Yes, sir. So this equation is simply, if you observe, मेरा सर्किल का इक्वेशन में I have put the point x1 y1, right? Yes or no? This expression is nothing but the expression after putting the point on this equation, right? Yes or no? So this is called, what is this called? आपको याद है? If you put a point on an equation, the number that you get is simply called S1. Yes or no? अगर सर्किल का इक्वेशन को हम S से रिप्रेजेंट किया तो something is equal to 0. What is S1? S1 is the number that you get after putting the first point on this equation. Okay? समझ में आ रहे? So S1 greater than 0 is the condition. So एक पॉइंट सर्किल का अंदर है या बाहर है कैसे डिसाइड करिएगा? जस्ट उस पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में पुट करना है. अगर पॉजिटिव नंबर आया तो पॉइंट सर्किल का बाहर होगा. नेगेटिव नंबर आया तो सर्किल का अंदर होगा. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस और नो? समझ में आया या नहीं? Yes, sir. क्लियर? सो S1 लेस देन 0 है तो द पॉइंट लाइज inside the circle. If S1 equal to 0, if I substitute the point, the equation got satisfied. What does it mean? That means the point lies on the circle. Clear है? So एक example देखिए. So the equation of सर circle. कॉपी करने दीजिए. क्या है बेटा? ठीक है, आप ये वाला कॉपी कर लीजिए. So S1 greater than 0 है तो आउटसाइड. ओके. S1 लेस देन 0 है तो इनसाइड. S1 इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कल. क्लियर और नॉट? सो डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट S1 मीन्स? बोल सकते हैं कोई S1 का मतलब क्या है? What is the meaning of S1? सर जब पॉइंट P को हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, जो नंबर आएगा that is called S1. क्लियर है? इसे सो नोट किया यहां तक? नोट किया या नहीं? हो गया सर. So now you have an example. Okay, so the equation of circle is x square plus y square minus 25 equal to 0. This is my S. सर्किल के इक्वेशन को हम S बोलते हैं. ओके, दिस एक्सप्रेशन इज S. कैन यू सी दिस? दिस एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय S. So 3 points are given. You have to check whether the points lie inside or outside. So what is S1 corresponding to 5, 1? 5 square plus 1 square minus 25. ऐसा ना? ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना? क्लियर और नॉट? व्हाट इज S1 corresponding to 4, 3? 4 square plus 3 square minus 25. सर हाँ बोलिए बेटा. सर 5,1 मतलब सर वो आउटसाइड द सर्कल है. हाँ पॉजिटिव आया ना, सो आउटसाइड. 4, 3 पे इक्वल टू 0 आया, सो ऑन द सर्कल. व्हाट इज S1 corresponding to 3, 2?
3 square plus 2 square minus 25. So 13 minus 25 minus 12 आ रहे हैं, which is less than 0, right? So inside. सर इनसाइड द सर्कल. Easy है? Shall I go forward? Is this easy? समझ में आया? Yes, sir. So S1, S1, S1. Clear है? Next. नोट किया होगा पूरा previous question? Yes, sir. So as you can see, this is valid for big equation also. ये तो छोटा equation है, origin center है, but बड़ा equation के लिए भी same process है. Clear? Now intersection of a straight line and a circle. Assume that you have a circle x square plus y square is equal to a square and y equal to mx plus c. Okay. So ध्यान दे दीजिए, अभी जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, आई एम डूइंग फॉर ए स्टैंडर्ड सर्किल एंड ए स्टैंडर्ड लाइन. क्लियर है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर छोटा इक्वेशन है ना? Yes, sir. ठीक है. ये जो अभी जो डेरिवेशन कर रहा हूं, दैट विल नॉट वर्क फॉर बिग इक्वेशन. ओके. ऑरिजिन सेंटर है इसका. इफ यू हैव ए सर्किल विथ ऑरिजिन एज सेंटर and you have y equal to mx plus c, is this any special line or a general line? General line. ठीक है. जनरल लाइन. So you have a circle and a line. So if you want to check whether this line is cutting the circle at 2 points or tangential or outside, कैसे check कर सकते हैं? One of the way is to solve these two equations. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया आपने, अगर 2 सॉल्यूशंस आया तो, इफ यू आर गेटिंग 2 सॉल्यूशंस, व्हाट डज दैट मीन? Intersects at 2 points. हाँ, if you have only one solution, if you are getting only one solution, that means एक ही पॉइंट पे कट कर रहे, इसका मतलब tangent है. समझ आ रहे? if there are no solutions, what does that mean? if these टच कुछ भी नहीं कर रहा है. हाँ, समझ आ रहे लॉजिक क्या है? So you are going to solve the circle and the equation of the line. So कैसे solve करिएगा? How do you solve two equations? Eliminate variables. Eliminate one variable. So कैसे eliminate करिएगा? यहाँ से y equal to mx plus c लेके यहाँ पुट कर लीजिए, है सर? स्ट्रेट लाइन से y equal to mx plus c लेके यहाँ y के प्लेस में पुट कर लीजिए. So what are you going to get? x square plus mx plus c whole square plus is equal to a square, yes or no? So x square plus m square x square plus c square plus 2mcx is equal to a square. So x square के साथ 1 plus m square plus 2mcx plus c square minus a square equal to 0. सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? Okay, so this is the quadratic in x which is shown here. Clear or not? यहां तक ओके है? Yes, sir. So now this is a quadratic in x, right? So एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं? Whether a quadratic equation has 2 real roots or 1 real root or no real roots depends on what? Discriminant. हाँ, discriminant पे डिपेंड करता है, right? So we are now going to analyze the discriminant. So what is the discriminant for this? ध्यान दे दीजिए, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 plus m square into c square minus a square. This is the discriminant, right?
Yes or no? So we are going to analyze this in the next slide. Shall I go forward? Yes, sir. So discriminant is that, right? क्लियर है डिस्क्रिमिनेंट? सो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लीजिए. Discriminant greater than 0, then what happens? What if discriminant greater than 0? Two real roots, इसका मतलब क्या है? The line 2 is point of intersection. the line is intersecting the circle. Okay. So थोड़ा सा एक टर्म कैंसिल हो जाएगा आप एक्सपैंड किया तो. सो इफ यू एक्सपैंड दिस, 4 तो कॉमन ले लीजिए. ओके. सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर. ऐसा ना? एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं. क्लियर? सो 4 तो कैंसिल कर सकते हो ना, क्योंकि उस तरफ 0 है. यहाँ तक क्लियर है? सो व्हाट आर द थिंग, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो रहे. सो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर. कंडीशन आया? क्लियर? So c square is less than a square times 1 plus m square. This is the condition for what? Intersecting. Clear है क्या नहीं? समझ में आ रही है? तो सर रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर. सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर c का वैल्यू c स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर रेडियस स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से छोटा है तो द लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग द सर्कल. क्लियर है? अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग. लास्ट में एक बार एक जगह लिखेंगे सब कुछ. ओके okay? सो इनडायरेक्टली देखा तो देखिए एक सर्कल है, मेरा सर्कल का सेंटर क्या है जिसका हम डेरिवेशन किया 0,0. दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वॉट इज द कंडीशन? सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट? Yes, sir. सो दिस इज सेम एज, ध्यान दे दीजिए, सेंटर से लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस if it is less than the radius, does that mean that the line intersects the circle at 2 points? If a line intersects the circle at 2 points, then what should be the condition? The perpendicular distance should be less than the radius as well. Yes, sir. So what is the perpendicular distance from origin to this line? C by root of 1 plus m square. So no, modulus of c by root of 1 plus m square. This should be less than a. क्लियर? सो एग्जैक्टली यही कंडीशन है, देखिए जो हमको क्वाड्रेटिक से आया. इफ यू स्क्वायर दिस आउट, सी स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर. सो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. सेम है क्या नहीं? क्लियर?
सो सेम कंडीशन आपको दो तरीके से निकाल सकते हैं, वन बाय सॉल्विंग द लाइन एंड द सर्किल एंड टेकिंग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, और बाय अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्रिकल फैक्ट दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर is less than the radius. Clear or not? समझ में आ रहे? So length of radius is greater than the perpendicular distance है, तो that means the line cuts the circle at 2 points. Okay? समझ में आया यहाँ तक? Okay or not? तो फिर रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आया या नहीं? यस सर। बाकी लोग और कोई है क्लास में? यस सर। यस यस सर। सर। रिस्पॉन्ड करिए। सो बाकी कंडीशंस आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या होना चाहिए? देखिए, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? सो लॉजिकली अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आया तो क्या आएगा? ये जो है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन आया। ये कंडीशन कब आया होगा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 किया तो ये वाला कंडीशन आएगा, राइट? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो यू गोइंग टू गेट द कंडीशन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट? सो हियर व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट इज दिस कंडीशन फॉर? डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो both roots are same. That means you have only one root. Then the line will become tangent. अगर c square greater than a square into 1 plus m square आया तो not intersecting. Clear or not? So this is something which you need to remember. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बीच वाला याद किया तो दैट विल बी सफिशिएंट। बाकी दोनों अपने से you can, if you remember the middle one, you can write the other two. नोट कर लीजिए। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। सो केस 2, केस 3 ध्यान दे दीजिए। अब हमको क्या समझ में आया? देखिए, प्रॉब्लम में जाने से पहले व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हियर इज, सो इफ यू हैव ए सर्कल एंड ए स्ट्रेट लाइन, हाउ डू वी डिसाइड विच केस द लाइन एंड द सर्किल सेटिस्फाइज? सिंपली आपको क्या करना है, सर्किल का सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो रेडियस से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? द लाइन इज आउटसाइड। एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस आया तो टैंजेंट। रेडियस से कम आया तो इंटरसेक्टिंग। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? So if it is clear, let us try to solve this question. Find the coordinates of the point of intersection of this line and this circle. So एक बार चेक करेंगे, is the line cutting the circle? वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्किल का सेंटर 0, 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 है ना?
ऐसा नो, सर्किल का सेंटर 0,0, रेडियस इक्वल टू 5, राइट? ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 0,0 टू दिस लाइन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 25 बाय रूट 50, that is 25 by 5 root 2, which is equal to 5 by root 2 is less than 5 आ रहा है ना, right? yes or no? तो इसे रेस्पॉन्ड करिए बेटा, आपका नाम मुझे दिख नहीं रहे, डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. Yes, Yes, sir. sir. So the distance from the center is less than the radius, that means the line is intersecting the circle, right? बट आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए इस क्वेश्चन में, तो क्या करना पड़ेगा? हाउ डू यू गेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? एनीबॉडी? हाउ यू गोइंग टू गेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? एनी सजेशन व्हाट वी कैन डू टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस? कुछ रेस्पॉन्ड करिए बेटा. Yes, sir. क्या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो सर क्या कर सकते हैं? हाँ, सर वो मॉड्यूल्स के अंदर है ना सर, क्या मॉड्यूल्स परपेंडिकुलर के अंदर? डिस्टेंस, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ हाँ, इसलिए मैं माइनस नहीं लिया मैंने, जस्ट कांस्टेंट का नंबर लेना पड़ेगा, राइट? Now you are asked to find the coordinates of the point of intersection of the line and the circle. So कैसे कर सकते हैं? कुछ सजेशन दीजिए एनीबॉडी, क्या करना पड़ेगा मुझे? किसी को कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है? Any responses? Any responses? सो एक लाइन और एक सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? सिंपली बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस. सो 7x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू कितना है? 7x माइनस 25. सो ये y के प्लेस में पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. So x square plus 49x square 50x square. So 2ab टर्म क्या आएगा? माइनस 350x, और यहाँ 625 माइनस 25 प्लस 600 इज इक्वल टू 0. सो 50 अगर कैंसिल किया तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 3 इंटू x minus 4 will be equal to 0. So x is equal to 3 और 4. So इसका मतलब एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, दूसरा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4. Yes or no? So if you have this circle
and if you have this line, they are intersecting at 2 points. One point has x coordinate 3, the other point has x coordinate 4. Okay, so y coordinate Yes, कैसे sir. निकालिएगा? Because this point has to lie on this line. लाइन में तो होना चाहिए ना. So y is equal to how much? So as we know, y is equal to 7x minus 25. Yes or no? So x coordinate 3 है तो y coordinate कितना होगा? -4. -4. y coordinate 4, x coordinate 4 है तो y coordinate कितना होगा? 3. क्लियर है? यहाँ पुट करके. So what are the points of intersection? 4, 3 and 3, -4. क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. अगली बार से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करना है? You just have to solve the equations. Clear? Yes, sir. So you just have to solve the equation. Solve किया, x equal to 3 and 4, point of intersections आ गए. Clear है? Next, intercepts on axis. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं अगर ये आपको याद है तो. So if you have a circle, so what is the meaning of intercepts? The circle might cut the x-axis at 2 points AB. It might cut the y-axis at 2 points CD. So A से B तक डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट. C एंड D के बीच में डिस्टेंस को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट. ओके, सो दिस इज द सेंटर. व्हाट इज द सेंटर? -g, -f. ओके, इजी. सो आपको ये तो पता है ना, इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर इट विल bisect the chord, right? So if you join CA का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस होगा या नहीं? Yes, sir. What is this distance? This distance is nothing but the y coordinate. Yes or no? x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? y कोऑर्डिनेट है ना, -f. क्लियर है? इसके लिए मॉड होगा इसका. सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कैन यू फाइंड दिस? दिस इज AB by 2, right? So AB by 2 is equal to root of r square minus f square, right? Can I write this? Yes, sir. And what is the formula for r square? g square plus f square minus c minus f square. f square cancel हो गया. So AB is equal to how much? 2 root g square minus c. Clear? Yes, sir. So similarly you do the same concept with the y intercept. यहाँ भी सेम आएगा. This is r but this is how much this time? Perpendicular distance क्या होगा इस बार? जो -f जो है इस बार -g होगा, राइट? So here instead of f square getting cancelled, now g square will get cancelled. So CD will be equal to 2 root f square minus c. Clear or not? समझ में आया? Yes. फॉर्मूलास याद होना चाहिए. ओके, देखिए x से xb, x से xd. देखिए एक और डेरिवेशन. दिस इज वन सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन. दूसरा डेरिवेशन क्या है?
दूसरा डेरिवेशन क्या कर सकता है? सो ऑन दिस सर्कल इक्वेशन इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0, व्हाट इज दिस लाइन? x एक्सिस क्या है? y इज इक्वल टू 0, ऐसा नो? x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y is equal to 0. So these 2 points are nothing but the points of intersection of the circle and the line y is equal to 0. Yes or no? So circle and y is equal to 0 का points of intersection चाहिए तो कैसे निकालना है? What is the logic by which you can find points of intersections of the circle and y is equal to 0? कुछ बोल सकते हैं? सॉल्व करना पड़ेगा ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, राइट? Yes, sir. सो y इक्वल टू 0 पुट किया तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा. व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? दिस विल बी लेफ्ट आउट. दिस इज क्वाड्रेटिक, सो इसका दो सॉल्यूशंस होगा. वन सॉल्यूशन इज एक्स ए एंड द अदर सॉल्यूशन इज एक्स बी, राइट? एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी? Once you know xa and xb, what should you do to get the length of ab? दोनों को ऐड करने से होगा या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? आपके पास xa है, xb है, ab का लेंथ चाहिए तो xa माइनस xb करना है कि xa प्लस xb करना है? x से माइनस हाँ, या जो भी है xb माइनस xa या xa माइनस xb मॉड लेना पड़ेगा, राइट? सो xa माइनस xb का मॉड का मतलब है दिस नथिंग बट डिफरेंस ऑफ रूट्स, ऐसा नो? से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है? याद है आपको? रूट ऑफ xa प्लस xb का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स xa xb किया तो हो जाएगा या नहीं? डिफरेंस ऑफ द रूट्स चाहिए तो रूट ऑफ सम ऑफ द रूट्स होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला तो है ना, राइट? समझ में आया ये? Yes. Yes, sir. सो व्हाट इज xa प्लस xb? सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है? इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? रेस्पॉन्ड करिए. माइनस 2g हाँ, सो उसका होल स्क्वायर इज 4g स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? सब b बाय a. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलिए ना, इस इक्वेशन का क्या है? c है ना? सो यहाँ से भी 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी आ रहा है. देखिए सेम आंसर. देखिए जैसा भी करिए, एज लॉन्ग एज योर कॉन्सेप्ट इज राइट, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर्स. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. So what are the intercepts of a circle? X intercept is 2 root g square minus c, y intercept is 2 root f square minus c. Clear है? ओके. देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, ओके, एक आर्बिट्री लाइन होगा, कोई भी आर्बिट्री लाइन. You have some arbitrary line. You have some arbitrary line. कोई भी x एक्सिस होने का जरूरत नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा. सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. You'll be asked to find the length of the intercept. What is the process? Can you think of a process to find the length of intercept of a general line with a general circle? क्या करना पड़ेगा? Any suggestions?
आयुषी कुछ बोल सकते हैं? अगर आपके पास एक सर्किल का इक्वेशन है, मिस्टर सी को उस सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हाँ, दैट इज वन वे। सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ सॉल्व किया ना, वैसे ही सॉल्व करके x में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, राइट? सो x एंड x1 एंड x2 आ जाएगा। वंस यू गेट x1 एंड x2, लाइन में सब्स्टिट्यूट किया तो y1 एंड y2 भी आ जाएगा, राइट? वंस यू गेट दिस, इसके बाद क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, राइट? यस और नो? समझ में आ रहे? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. और देर इज एन ईजियर मेथड, वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत काम करना पड़ेगा आपको। क्वाड्रेटिक बना के इसके बाद x1 x2 सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है ना, वो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन इतना अच्छा नहीं होगा। सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस देखने में अच्छा नहीं होगा ना, राइट? सो इज देयर एन ईजियर वे टू डू दिस, टू फाइंड द इंटरसेप्ट? कुछ और मेथड दिख रहा है आपको? दिस इज द हिंट। सर्किल के इक्वेशन पता है, इसका मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता है, राइट? सो माइनस जी को माइनस एफ। हाँ, एंड इफ यू नो द सेंटर कोऑर्डिनेट्स, कैन यू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन? निकाल यस सकते हैं सर, कि नहीं? रेडियस निकाल सकते हैं सर्किल का? यस सर, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ, सो ए बी का लेंथ जो है रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का 2 टाइम्स होगा या नहीं? ऐसा नो? देखिए, आर निकालना बहुत ही ईजी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना भी बहुत ईजी है, क्योंकि वंस यू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जस्ट पुट करके आंसर आ जाएगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। समझ में आया? ओके और नॉट? Yes, sir. देखिए, 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, देखिए अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी है, इसका मतलब क्या है? एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इंटरसेप्ट बीइंग 0? सर्किल इज touching x axis, right? Yes or no? Yes, sir. f square equal to c है तो the circle is touching y axis. Okay or not? g square equal to f square equal to c है तो if g square equal to f square is equal to c, तो दोनों एक्सेस बन जाएगा हाँ, दोनों टेंजेंट टू द एक्सिस को सर्कल। टच कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? हाँ, सो इसका करिए, जस्ट गेट द इंटरसेप्ट्स। सर सर एक बार सेकंड वाला अल्टरनेट मेथड करके दिखाइएगा अच्छा से ना, वो समझ में नहीं आया हाँ, उतना। हाँ। एक काम कर लेते हैं, इसमें एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, पहले ये निकाल दीजिए।
Find the x and y intercept of the circle. Find the x and y intercept of a circle. So easy है ये. 2 रूट जी स्क्वायर कितना है इसका? जो मैं कर रहा हूं समझ में आ रहा है? y इंटरसेप्ट क्या है? What is the y intercept? 2 root f square is how much? F square is 9 minus c. यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं है? तो सर रेस्पॉन्ड करिए ओके और नॉट जो मैं किया हूँ. यस सर. इजी है ना? बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इसने 2 जो है थोड़ा सा मिस कर लिया. यहाँ 2 होना चाहिए एक्स्ट्रा. ओके क्लियर हो? देखिए बेटा यहाँ मैं बोल रहा हूँ. देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ यू हैव ए सर्कल, फॉर एग्जांपल दिस सर्कल, इसका सेंटर कितना है? 6, -3. ओके क्लियर? What is the radius of this circle? Root of g square सर 9 plus प्लस f square minus of minus sir. 4 plus 4, right? So root of 49, 7, right? x intercept y intercept निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल लेट मी हैव ए लाइन. सो मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है समथिंग लाइक 4x plus y is equal to 22 for example. Sample example है, ठीक है? I have a line like this. I have told you that this line is cutting the circle. वो आपको चेक करने का जरूरत नहीं है. Okay? Let us say that this line is cutting the circle at 2 points AB. So I want the intercept. I want the length of the intercept. Clear है? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया पहला? यस सर. इसको डायरेक्टली अगर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके सब करने के लिए सोचा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? y इज इक्वल टू 22 माइनस 4x. ऐसा लो, ये 22 माइनस 4x को यहाँ y के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करना है. यू गेट ए क्वाड्रेटिक इन x. ऐसा लो, उसको सॉल्व करके, उसको सॉल्व किया तो क्या आएगा? x1 x2 आएगा, राइट? दैट मीन्स a का x1 b का x2. क्लियर? सो वंस यू गेट x1 एंड x2 you substitute in this line, you're going to get y1 and y2, right? यस सर. And after you get x1 x2 y1 y2 you're going to get the distance formula. You're going to use the distance formula. Okay? बहुत लंबा प्रोसेस है ये, लॉन्ग प्रोसेस. क्लियर है? अब शॉर्टकट क्या है इसके लिए? व्हाट इज अ शॉर्टकट प्रोसेस? फर्स्ट आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक? सेंटर से लेके इस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. बहुत इजी है क्या नहीं? बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना है? जस्ट यू हैव टू पुट द पॉइंट ऑन दिस लाइन. 4x Yes, is sir. 24 minus 3 minus 22 by root of 4 square plus 1 square 17, right? इसका मॉडुलस ले लेता हूँ. तो कितना आएगा? 1 by root 17, right? समझ में आ रहा है? यहाँ तक ओके? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया. क्लियर?
what is the radius of this circle? Radius of the circle is 7. We have already found 7. out. So can you see that you can use Pythagoras theorem here? इस डायग्राम में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. ये d है तो ये लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, bd स्क्वायर. Yes or no? Yes, sir. So bd square is equal to r square minus p square, right? R square is 49 minus p square is 1 by 17. Yes or no? So bd is equal to square root of whatever is this calculation. Calculation एक बार तो कर सकते हैं ना हम. Calculation तो बहुत easy है. And what is AB? AB is nothing but 2 times BD है ना. समझ में आ रहे? So directly AB जो है 2 times root of 49 minus 1 by 17 is the answer. Clear or not? Easy लग रहा है ये process? Yes, sir. देखिए डिफरेंस एक्चुअली आपको तब समझ में आएगा तब एक बार आप ये फर्स्ट प्रोसेस से करें. फर्स्ट प्रोसेस से करके उसका डिफिकल्टी समझ लिया तो सेकंड प्रोसेस को ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं आप लोग. फर्स्ट प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा. अब समझ में आया बेटा सेकंड प्रोसेस? Yes, sir. सो सेकंड प्रोसेस कहाँ यूज होगा? फॉर विच क्वेश्चंस डू वी यूज द प्रोसेस? क्वेश्चन में आपको एक सर्कल मिल जाएगा और एक लाइन मिलेगा एंड व्हाट विल बी आस्क्ड. बोल सकते इंग्लिश में क्या पूछेगा? फाइंड द डैश. Point of intersection. नहीं, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको सेकंड मेथड काम नहीं करेगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा. Intercept. फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन दिस सर्कल. समझ में आ रहे? वो इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरसेप्ट. If you are asked to find the intercept, then this process will be useful. Clear or not? Okay. Shall I go forward? Yes, sir. Next, tangent to a circle. So ध्यान दे दीजिए, what is the condition for tangency of a circle? If you have a circle x square plus y square equal to r square and a line y equal to mx plus c, we have already derived the condition for tangency. याद है आपको? c square is equal to a square into 1 plus m square. ऐसा no? This is the condition for tangency. That means c is equal to plus or minus a root 1 plus m square. समझ में आ रहा है कि नहीं? Clear or not? Yes, sir. सो एक्चुअली आप देख लीजिए, एक सर्किल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. एक पर्टिकुलर स्लोप का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या है? स्लोप कितना है इस लाइन का? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? m. ओके. M. सो इफ यू टेक ऑल द टेंजेंट्स ऑफ स्लोप m, इस पर्टिकुलर सर्किल का एक पर्टिकुलर स्लोप का कितना टेंजेंट्स आएगा? इफ यू कंटिन्यू ड्रॉइंग लाइंस ऑफ स्लोप m, मान लीजिए लाइन ऑफ स्लोप m आप ड्रॉ करते रहिए ऐसा. स्लोप m का मतलब पैरेलल लाइंस आएगा, राइट? आउट ऑफ दीज पैरेलल लाइंस हाउ मेनी लाइंस विल बी टेंजेंट्स टू दिस सर्कल? 1. 1 या 2?
2 सर 2 होगा ना, एक यहाँ समझ में आ रहे? So all these lines are corresponding to mx plus something, right? Yes or no? So if the line has to be a tangent to the circle, वो something क्या होना चाहिए? वो something क्या होना चाहिए? c क्या होना चाहिए? प्लस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो सकता है, या माइनस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो सकता है। समझ आ रहे? क्लियर और नॉट? प्लस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर किया तो आपको एक एक्सट्रीम का टेंजेंट आएगा, माइनस यूज किया तो दूसरा एक्सट्रीम का टेंजेंट आएगा। क्लियर है? ओके और नॉट? समझ में आया? यस सर मतलब क्वेश्चंस कैसा आएगा? फॉर एग्जांपल यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, फाइंड tangents of slope 2। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 मान लीजिए लाइन है, ये सर्कल है, सेंटर क्या होगा इसका? ऑरिजिन होगा, राइट? आई वॉन्ट द टेंजेंट्स ऑफ स्लोप 2। कितना टेंजेंट्स आएगा 2 स्लोप का? स्लोप 2 का मतलब समथिंग लाइक दिस, पॉजिटिव स्लोप। तो दो हाँ, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, राइट? समझ में आ रहे? सो ये दोनों का इक्वेशंस चाहिए आपको, तो क्या करिएगा? बिकॉज द स्लोप इज गिवन, सो y इक्वल टू 2x जैसा होना चाहिए ना, दोनों y इक्वल टू 2x जैसा होना चाहिए क्या नहीं? क्योंकि स्लोप 2 है, प्लस समथिंग होना चाहिए, ऐसा नो? बोथ दिस लाइन्स शुड बी ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू 2x प्लस समथिंग, ऐसा नो? Okay, so as long as you put anything here, all the lines will be of slope 2, but ये lines जो है सर्किल का tangent भी होना चाहिए। so सर्किल का tangent होने के लिए what should this number be? the c should be equal to a का मतलब है इसका रेडियस, 5 रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर कितना है? एम स्क्वायर इज 4। इसका मतलब ऐसे आइदर 5 रूट 5 होना चाहिए और माइनस 5 रूट 5 होना चाहिए। समझ में आ रहे? सो व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स ऑफ स्लोप 2? एक है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रूट 5 एक टेंजेंट है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 रूट 5 एक टेंजेंट है। समझ में आ रहे? क्लियर और नॉट? समझ में आया? समझ में आया या नहीं? Yes, sir. So what is the use of this condition? From now, if you are given a circle x square plus y square is equal to a square, if you are given the circle, a tangent of slope m, if you are asked to find a tangent of slope m, if you want to find out a tangent of slope m, डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं आप? y इज इक्वल टू mx, क्या होगा बाद में? प्लस और माइनस a अंडर रूट अंडर m1 प्लस m स्क्वायर, a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। समझ आ रहे? सो क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन? ये m मिल जाएगा, सर्किल का इक्वेशन से a मिल जाएगा। सो यू नो एवरीथिंग इन दिस इक्वेशन। समझ में आ रहे? यू जस्ट हैव टू पुट द नंबर्स। क्लियर और नॉट? जैसा सर्किल का इक्वेशन मिल गया, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ स्लोप 2। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? जस्ट यू पुट m is equal to 2 here, y is equal to 2x plus or minus a is 5 radius root of 1 plus m square 5 root 5 हो गया।
क्लियर और नॉट? यस सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सर्कल्स का tangents निकालना. So this equation is called slope form of tangent. क्या है? Slope form of tangent. Clear है? This equation is called slope form of tangent. Clear? Yes, sir. So सब कुछ ज़रूरत नहीं है. Basically that is the condition. A equal to plus or minus a root 1 plus m square. So y equal to mx plus or minus a root 1 plus m square. ये नोट किया? Did all of you note this? यस। So this is called the slope form of tangent. Okay. So what is the number of tangents to a circle with slope m? एक particular slope का कितना tangents होगा? 2। 2 tangents. Okay. Something like this. So एक का y intercept plus r root 1 plus m square होगा, दूसरे का minus r root 1 plus m square होगा. r भी यूज कर सकता है ना. Basically this is nothing but the radius of the circle. Okay. r is nothing but the radius of the circle. Clear है? अगर रेडियस को r मान लिया तो r रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, a मान लिया तो a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. क्लियर? इजी और नॉट? Yes, sir. आप ध्यान दे दीजिए. Find the equations of tangents to this circle which are perpendicular to this line. ठीक है, एक सर्किल दिया है, एक लाइन दिया है, इस लाइन का परपेंडिकुलर टेंजेंट्स चाहिए आपको. समझ में रहे क्वेश्चन? सो इस लाइन का स्लोप कितना है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? माइनस सर -4। 4/3, राइट? सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स? 3/4. स्लोप ऑफ टेंजेंट्स 3/4. इसका मतलब मेरा टेंजेंट्स का स्लोप क्या होना चाहिए? 3/4 होना चाहिए. ओके. सो एक्स सर्किल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3. सेंटर क्या है सर्किल का? 2,3. व्हाट इज द रेडियस? व्हाट इज द रेडियस? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3. सो रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा. क्लियर? सो डायरेक्टली y इज इक्वल टू mx. m कितना होना चाहिए? 3/4 इंटू एक्स प्लस आर माइनस r कितना है? 4 रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर 9/16, which implies y is equal to 3/4 into x प्लस आर माइनस, यहाँ एलसीएम लेने के बाद ऊपर 25 नीचे 16, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5. क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने? r रूट 1 प्लस m स्क्वायर. ओके. सो इज दिस द करेक्ट आंसर? करेक्ट और रॉन्ग? ऐसा कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? आई हैव यूज द जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म. y इक्वल टू mx प्लस आर माइनस r रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. क्वेश्चन में दिया है कि टेंजेंट का स्लोप 3/4 होना चाहिए. सो आई हैव यूज दिस प्रोसेस. कैन इट बी डन और नॉट? Yes, sir. यस. बाकी लोग को क्या लग रहा है? Yes. Okay, the answer is no. You cannot do this.
Okay, I'm telling you that the answer is not correct. कुछ रीजनिंग दे सकता है, सोच सकता है क्यों गलत है ये. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है, कहाँ गलती है एप्लीकेशन. सर्कल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन है. हाँ, the problem is that the derivation that we have done is for x square plus y square is equal to r square के लिए. x square plus y square equal to r square के लिए the equation of tangent is y is equal to mx plus r minus r root 1 plus m square. समझ में आ रहे? ये इक्वेशन आप कोई भी सर्कल के लिए यूज नहीं कर सकते. समझ में आ रहे? ओनली फॉर स्मॉल इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्लियर और नॉट? ओके, गलती समझ में आया? ओके और नॉट? गलती समझ में आया सबको? Yes, sir. सो व्हाट शुड वी डू? सो इसके लिए आप ये नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डू दिस. सो व्हाट कैन वी डू? एक ऑप्शन है पूरा इसके लिए डेरिवेशन करके यूज कर सकते हैं, बट इज आर देयर एनी अदर मेथड्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? Are there any methods that you can think of? Sir, lines का हम्म. इक्वेशन बनाएंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन देम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि रेडियस वो तो रेडियस के ट्वाइस के बराबर है. हाँ, देखिए ठीक ठाक आइडिया आ रहा है, बट ध्यान से देखिए. देखिए, सो इस बार मैं क्या करता हूँ, देखिए, I won't be using the general form. So first thing that I know is the slopes of my tangents are, slope of tangent is equal to 3/4. तो पक्का है, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? ऐसा नो. So the equation of tangent should look like, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखने में कैसा होना चाहिए? 3x माइनस 4y प्लस सम लैम्डा इक्वल टू 0 जैसा होना चाहिए क्या नहीं? स्लोप 3/4 मेंटेन होना चाहिए. इज इट ओके? क्लियर और नॉट? यस सर. ऐसा होना चाहिए. So this is any line of slope 3/4. Now this has to be a tangent to the circle. So lambda क्या होना चाहिए? What is the condition on lambda such that this line is a tangent to the circle? So एक line सर्कल का tangent होना है तो क्या होना चाहिए? What is the condition? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेडियस से बराबर होना चाहिए. सेंटर इज 2,3, रेडियस इज 4. सो 2,3 से डिस्टेंस निकालेंगे. ओके, सो फॉर द लाइन टू बी tangent, for the line to be a tangent, what is the condition? Perpendicular distance is equal to radius होना चाहिए, right? So perpendicular distance क्या है? मॉडुलस ऑफ 2,3 को सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आएगा? 6 minus 12 minus 6 plus lambda divided by root of 3 square plus 4 square is 5 is equal to radius is 4. So lambda minus 6 is equal to plus or minus 20. sorry 20 mod निकालने के बाद प्लस और माइनस आएगा. सो लैम्डा इज इक्वल टू 26 और माइनस 14. क्लियर और नॉट? इजी है. Okay or not?
So what are the required tangents? 3x minus 4y plus 26 is equal to 0. 3x minus 4y minus 14 equal to 0. Clear or not? समझ में आया? बोलिए बेटे, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दिस इज वन वे, दिस इज द फर्स्ट वे. ओके, सेकेंड वे देखिए तो इजीली जो कर सकते हैं हम, ये भी इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है. ओके, सो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आर माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. है सर? राइट? This is something which you have learned. Okay, so instead of x you have x minus h here, instead of y you have y minus h, y minus k here. So tangent की इक्वेशन भी क्या हो जाएगा? x के प्लेस में x minus h, y के प्लेस में y minus k is something like origin transformation, right? याद है आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑरिजिन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, राइट? सर्किल का सेंटर चेंज करने का इतना ही मतलब है, आप ऑरिजिन को शिफ्ट किया है, राइट? सो एज द सर्किल हैज बीन शिफ्टेड, यू डू द सेम थिंग फॉर टेंजेंट ऑल्सो. सो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा? जनरल इक्वेशन y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस आर माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. समझ में आ रहे? क्लियर और नॉट? सो अगर इसी इक्वेशन को डायरेक्टली यूज करना है तो ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं. समझ में आया? Yes, sir. सो एक बार ऐसा करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, हमको क्या यूज करना है? y माइनस 3, ये वाला h एंड k आर दिस कोऑर्डिनेट्स, इज इक्वल टू m कितना है? 3/4 टाइम्स x माइनस 2 प्लस आर माइनस r इज हाउ मच? 4, राइट? रूट 1 प्लस 9/16. इसको सॉल्व किया तो भी सेम आंसर्स आएगा. एक बार चेक करेंगे. सो इफ यू टेक 4s कॉमन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 प्लस आर माइनस, सो यहाँ आप ये पूरा कैंसिल होके 5 आएगा ना, लास्ट टाइम हम किए हैं. 4 एंड नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 5 बचेगा. सो ये 4 से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, विच विल टर्न आउट टू बी 20. सो इफ यू सेंड एवरीथिंग ऑन टू वन साइड, यू गेट 3x माइनस 4y माइनस 12 उस तरफ गया तो प्लस 12 हो जाएगा. सो प्लस 6 प्लस आर माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? देखिए, चेक कर लीजिए. प्लस लिया तो क्या आएगा? प्लस लिया तो क्या आ रहा है? 26 माइनस लिया तो माइनस 14. आर यू गेटिंग द सेम आंसर्स? चेक कर लीजिए एक यस बार. सर. सो इक्वेशंस याद होगा आपको. देखिए, एग्जाम्स में ओनली इफ यू रिमेंबर दिस यू कैन डू देम इन एग्जाम्स. क्लियर और नॉट?
ओके Yes, sir. देखिए इसने सेम हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो किया 3x minus 4y plus lambda equal to 0. So you have found lambda using the perpendicular distance formula. Okay, perpendicular distance formula use करके you got the answers. Okay, shall I go forward? Next is tangent at a point. देखिए एक सर्किल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट चाहिए आपको. सो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए. अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो सिंपली टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स एक्स वन आएगा, वाई स्क्वायर के प्लेस में वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. You want the equation of tangent at the point 3, 4. आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या आना चाहिए सर x into 3. हाँ, सो 3x. वाई स्क्वायर के प्लेस में 4y 4y. इक्वल टू 25 हो गया. दैट इज द आंसर. क्लियर? छोटा इक्वेशन के लिए. बड़ा इक्वेशन के लिए भी सेम है. देखिए x1 y1 पे टैंजेंट चाहिए. सो एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या आएगा, एक्स एक्स वन. वाई स्क्वायर के प्लेस में वाई वाई वन. ओके, प्लस 2g इंटू एक्स के प्लेस में क्या आना चाहिए, x प्लस एक्स वन बाई टू. वाई के प्लेस में क्या आएगा, y प्लस वाई वन बाई टू प्लस c इक्वल टू 0. ओके, सो these substitutions are very standard. देखिए क्या substitutions यूज करना है. देखिए एक्स स्क्वायर को आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू वाई वाई वन. ओके, बेसिकली एक एक्स को वैसा छोड़ रहे हैं, दूसरे एक्स को आप एक्स वन बना रहे हैं. ऐसा नो, एक्स स्क्वायर इज एक्स इंटू एक्स, राइट. एक x को छोड़ के दूसरे x को x1 बना रहे हैं, y छोड़ के एक दूसरा y को y1 बना रहे हैं. सो x को क्या करना है, x इज नथिंग बट x बाई टू प्लस एक्स बाई टू मान सकते हैं. सो x को क्या करना है, एक x को छोड़ना है, दूसरे को x1 करना है. सो x प्लस एक्स वन बाई टू बनाना पड़ेगा. क्लियर? सो y को आप y प्लस वाई वन बाई टू बनाना है. So if you do these transformations, the equation that you get will represent a tangent equation. Okay? समझ में आ रहे? ऐसा ना? Yes, sir. Yes sir. सो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2. सो व्हाट इज द इक्वेशन, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन विच फॉर्म, पॉइंट फॉर्म है ये. इसका मतलब इस बार क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, एक सर्किल का इक्वेशन मिलेगा एंड you'll be asked to find the equation of tangent at a particular point on the circle. तब आप ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं. क्लियर? ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन करके विल कंक्लूड टुडे. सो आई वांट द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट 5, 4. सो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या आएगा, 5x.
वाई स्क्वायर के 5x प्लेस में प्लस 4y 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 माइनस 2 टाइम्स एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एक्स वन बाई 2, समझ में आ रहे, माइनस 2 टाइम्स वाई के प्लेस में 4y प्लस 4/2 2 माइनस 23 इज इक्वल टू 0। सो 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 बाद में कैंसिल कर सकते हैं। सो इफेक्टिवली कितना एक्सेस है, यहाँ 5x है, यहाँ माइनस x है, सो यू हैव 4x, 4y माइनस वाई इज 3y। ओके, कांस्टेंट देखिए यहाँ -5 -4 -9 -23 -32 इक्वल टू 0 हो गया। इज इट क्लियर? yes sir बट ध्यान दे दीजिए, दिस फॉर्मूला वर्क्स ओनली इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, ऐसा नो, सर्किल के ऊपर पॉइंट दिया तो तब आप टैंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो इसने क्या किया, पहला ये चेक किया कि 5,4 मेरा सर्किल में है क्या नहीं, क्योंकि अगर 5,4 बाहर है फॉर एग्जांपल 2 टैंजेंट्स आएगा ना, ऐसा ना, राइट। सो ये 2 टैंजेंट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, दिस सब्स्टिट्यूशन विल नॉट वर्क फॉर दीज टैंजेंट्स। सो ये पॉइंट फॉर्म है, व्हेन विल इट वर्क, इट वर्क्स ओनली इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल। क्लियर है क्या नहीं, समझ में आया? yes sir क्लियर है आंसर? सो आज जो हुआ टॉपिक्स सारा समझ में आया? yes yes sir So we'll continue in the next class, okay?